लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा। हर सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में, बीएसटी में, तुमने देख लिया जितने लेक्चर्स तुम्हें देखना है, तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत है। We were preparing only for the exam. Nobody told us to prepare for the environment and what was going to happen there. इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कौन करता है? इंग्लिश तो एग्जाम के पहले पढ़ा जाता है ना। This mindset might be right for boards but not for CUET. English will be your edge in CUET. And if you don't follow the tips I'm going to tell you in this video, you'll regret it. Hi guys, my name is Swati. Welcome back to my channel. I am studying in Delhi University, Daulat Ram College. In this video, I'll talk about, do you need coaching for English preparation or at all for CUET preparation? How to make English your edge. How to prepare for vocabulary, reading comprehension and grammar. YouTube channel suggestions, channels which I use and which I'll definitely recommend. Mock papers कौन से लगाने हैं. And finally, my bonus tips and things you should totally avoid in the end of this video. Don't forget to watch this video till the end. अगर कुछ छूटा, then it's on you. Okay. So, English में तीन sections हैं. पहला, vocabulary, reading comprehension and grammar. We will start with vocabulary, which is the part जहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा preparation करने की ज़रूरत है. Vocab now, हमारे time पे, I gave my CUET in 2024. We had to solve 40 questions out of 50. So we had an option to leave 10 questions. पर हमारे में भी बहुत सारे vocabulary पूछे थे. Now there is no certain ratio. कोई ratio नहीं है कि question किस segment में से आएगा. ऐसा भी हो सकता है कि 50% of questions are from vocabulary, आधे grammar में से और बाकी 25 from grammar, 25 from वो. कुछ भी हो सकता है. किसी भी ratio में पेपर आ सकता है. You never know. Now, for vocabulary, 2-3 चीजें करनी है तुमको. Channel recommendation will be, I refer to Adda 24/7 में रुबाइका मैम के classes. Now, what you can do for vocabulary is, take a plain sheet of paper. तुम्हें जैसे ही कोई नया word पता चले, उसको center में लिखो, circle बनाओ, divide it into 2 parts. उसके एक side पे उसके synonyms, उसके एक side पे उसके antonyms. This is one way, and ऐसे करके you will create your own booklet in 1 month, and before your exam, just revise it. Vocabulary is something जो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि तुम कितना भी प्रिपेयर करो पर वो कम हो सकता है. बट डरो मत इस बात से. vocabulary में first thing is this. second thing, focus on root words. YouTube खोलो, root words for English CUET करके search करो YouTube पे, and you'll find a lot of videos. There was a playlist of Unacademy. I don't remember the teacher's name, but Unacademy कोई playlist थी about root words. Dear Sir का एक video था about root words. तो root words देखो. root words क्या होते हैं? कुछ words होते हैं जिसमें जैसे unethical. तो UN is a रूट वर्ड. मुझे पता है अन का एक नेगेटिव मीनिंग होता है अगर अनएथिकल और अनरजिस्टर्ड. तो आई नो इट इज अ नेगेटिव वर्ड एंड इसका कुछ ऐसा ही मीनिंग होगा. दिस विल एटलीस्ट हेल्प मी मेक अ स्मार्ट गेस, अगर मुझे गेस करना है, अगर मुझे कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, वर्ड पावर मेड इजी. इस बुक को पढ़ने की कोशिश करो. 1 महीना है तुम्हारे पास. इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लो गूगल से. ट्राई टू रीड इट एंड गो थ्रू इट. इट विल हेल्प यू सॉल्व वोकैबुलरी. अगर एफर्ट डाल दोगे इसमें, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी पेपर में. थर्ड थिंग, वॉच इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वीडियोस एंड मेक नोट्स. यूट्यूब पे जाओ, सर्च फॉर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर सीयूईटी. बहुत सारे चैनल्स और वीडियोस आ जाएंगे. उनका एक नोट्स बना लो, लिस्ट बना लो एंड कीप रिवाइजिंग. नाउ एवरी डे मेक इट अ हैबिट. यू वेक अप, द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू गो थ्रू वोकैबुलरी. अब वोकैबुलरी कैसे करना है ये तुम्हारे हाथ में है. मेरा रिकमेंडेशन होगा, रूट वर्ड्स प्रैक्टिस करो, वोकैबुलरी वीडियो देख के लिस्ट बनाओ एंड सिनोनिम एंटोनिम्स प्रैक्टिस करो. इफ पॉसिबल, तुम्हें मन है, मेक फ्लैश कार्ड्स फॉर योरसेल्फ. फ्लैश कार्ड में क्या होगा, आगे वर्ड होगा, पीछे उसका सिनोनिम एंटोनिम एंड सम एग्जांपल कि कहां ये वर्ड यूज होता है एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ कोर्स. मेक अ लिस्ट फॉर योरसेल्फ जो तुम एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाओगे. सेकंड थिंग, सेकंड वी कम टू ग्रामर. देयर इज अ प्लेलिस्ट 120 rules of grammar by Rubaika ma'am Adda 24/7. Go through that. मेरा एग्जाम 15th मई को था इंग्लिश का. 13th and 14th I watched those 120 videos and जिस डेप्थ में ग्रामर उन्होंने पढ़ाया है, मेरे जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं वो सिर्फ वोकैबुलरी में हुए हैं, ग्रामर में नहीं हुआ है. आई थिंक एक हुआ था, दैट वाज सिली मिस्टेक. तो आई विल रेकमेंड वॉच दैट वीडियो
एंड जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ना यूट्यूब पे, सी आई स्टिक टू रुबाइका मैम, और भी मैंने चैनल्स देखे हैं इंग्लिश के लिए फॉर सीयूईटी, बट आई स्टिक टू हर क्योंकि मुझे जम रहा था, मुझे पढ़ा रही थी। नाउ इट्स इन योर हैंड कि तुम कौन से चैनल को वो करो, गिव इट लाइक 2-3 days, 2-3 अलग अलग चैनल टीचर्स को ट्राई करो एंड चूज करो कौन तुम्हें ज्यादा सूट हो रहा है, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आई विल रेफर दैट एंड मेक नोट्स फॉर ईच वीडियो। एक छोटा आधे पेज का नोट्स बनेगा फॉर एवरी वीडियो ऑफ 120 रूल्स, मेक दोस नोट्स। देन अभी नाउ दिस ईयर बहुत सारे अभी भी वीडियोस यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रहे होंगे फॉर ग्रामर, फॉर वोकैबुलरी, फॉर आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उनसे उनको देखो, क्वेश्चन टीचर के साथ सॉल्व करो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के गो थ्रू करो, बहुत प्रैक्टिस होगी, समझ में आएगा कैसे करना है, किसी टीचर के साथ करने में समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू विल हैव टू बाय सम बुक्स फॉर इट। इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए बाय सम बुक्स। नाउ इफ यू कैन गेट एपीसी के बुक्स इट विल बी ग्रेट, फिजिक्स वाला ट्राई कर सकते हो। मैंने पास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लिए थे और खरीद लिए थे कहीं से, एंड आई जस्ट सॉल्व पास्ट ईयर पेपर व्हिच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड, बट नो वरीज। इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट? Why? How can English give you an edge? Why am I saying this? अकाउंटेंसी तुम सब पढ़े हो, बीएसटी सब पढ़े हो, बीएसटी इकोनॉमिक्स सबने किया है। ये जो इंग्लिश का वो है ना, यहाँ पे बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोप होता है टू मेक अ मिस्टेक, बिकॉज आई बिलीव इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसमें तुम एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिकॉज द सेम क्वेश्चन कैन हैव 3 different आंसर्स एंड तुम वो तीनों ऑप्शन में दे रखे हो, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। So I don't understand the concept of MCQ for English, and honestly जो vocabulary के भी questions आते हैं ना, those are very confusing, कि मतलब similar words दे दिए options में and you are confused कि इसमें से select कौन सा करना है। Now the bonus tip I will give you, understand this, it is not about the number of questions you solve, it is about कितने question तुम सही कर रहे हो, ठीक है। I'll give you an example, 120 question एक पेपर में, ठीक, नेगेटिव मार्किंग है, one student solves 100 questions out of 120 and another one solves only 80 out of 120, पर जिसने 100 किया है उसके 25 क्वेश्चंस गलत थे और जिसने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके 5-6 क्वेश्चंस गलत थे, एंड गेस व्हाट, द पर्सन हु सॉल्व 80 क्वेश्चंस got the admission, and this is a true story. Therefore it is not about the number of questions you solve, it is about number of questions you get right. ये शायद मोस्ट प्रोबेबली मेरा गलत होगा, मत करो, छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग से बेटर है कि उसमें तुम्हें मार्क्स ना मिले, हमारे एग्जिस्टिंग मार्क्स तो उतने रहे। एंड आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन छोड़ना, ये हमारी आदत होती है, बोर्ड्स में हमें आदत डलवाई जाती है कि सॉल्व एवरी क्वेश्चन, पर यहाँ पे यू हैव टू चूज, तो अचानक से एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, तो मैं लगता है हाउ कैन आई लीव अ क्वेश्चन, बट यू हैव टू, इफ यू डोंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन डोंट सॉल्व इट, जस्ट डोंट, जो आते हुए चीज है उसको हटाओ मत, उसको कम मत करो। सेकेंड थिंग, लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा, हर सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में, बीएसटी में, तुमने देख लिया जितने लेक्चर्स तुम्हें देखना है, तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत है। यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स एंड पैराग्राफ्स में लिखना एंड एवरीथिंग, एमसीक्यू का हैबिट नहीं है तुमको, तुमसे सिली मिस्टेक हो जाएंगे, तुम्हें हैबिट नहीं है एमसीक्यू सॉल्व करने की। Therefore, practice as much as questions as you can. I had a target of solving 100 MCQs in each subject every day. थोड़ा हेक्टिक होता था, पर हो जाता था। वही करो, टारगेट सेट करो, टुडे आई सॉल्व 50 MCQs। यार मेरे को इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना है, एंड डू दैट। प्रैक्टिस इज द की इन दिस। लेक्चर्स मत देखो बैठ के कि कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। सो फॉर इंग्लिश, इन कंक्लूजन, तुम्हें रूट वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करने हैं, ग्रामर, तो वोकैबुलरी, ग्रामर एंड आरसी। अब इसके लिए आई टोल्ड यू द सोर्सेज, आई टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर क्वेश्चन, डोंट जस्ट राइट एंड लीव योर नोट्स, go through them and then solve questions. And one more very important thing, idioms आते हैं पेपर में, take out a list of important idioms from Google, learn them. Then there is an app, मेरे टाइम पे था वो, try to find an app जिसमें तुम्हें बहुत सारे notes and mock papers and वो मिल जाए, हैं ऐसे apps available हैं, search on Play Store and find them. मुझे और मेरी दोस्त को, हमें एक ऐप मिला था जिसमें देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड मॉक पेपर्स एंड नोट्स, एंड उसका नाम बहुत सिंपल सा था, सीयूटी एग्जामिनेशन करके, बहुत सिंपल सा नाम था ऐप का। एंड कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, नहीं जरूरत है, मत पैसे खराब करो अपने,
कोचिंग इज नॉट, इफ यू रियली वांट, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लोकेलिटी में बहुत कोई अच्छा कोचिंग है जो प्रिपेयर करवा रहा है, जो मैं सीनियर रिकमेंड कर रहे हैं, कर लो। बट यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इफ यू वांट यू कैन डू इट यूट्यूब से, यू डोंट नीड कोचिंग फॉर दिस। माय ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस, कोचिंग की जरूरत नहीं है फॉर दिस, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड डरो मत। आई नो स्कैरी है, आई नो अचानक से तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया है, तुम्हें अभी तक कितना गाइड किया जा रहा था सब चीजों के लिए, अचानक से तुम्हारे ऊपर सब चीज आ गया है, तुम्हारे पास कंफ्यूजन, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। आई टोटली अंडरस्टैंड, बिन देयर डन दैट। पर डरो मत, सब चीज करने का मत कोशिश करो, एक गोल बनाओ उसकी तरफ काम करो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो गलत कर रहे हैं सब। सारे नाव पे पैर रख के चलने की कोशिश मत करो, गिर जाओगे। एक एम डिसाइड करो, उसके पीछे काम करो। एंड अगर तुमने वीडियो यहां तक देख ली है, देन देयर इज सम बोनस टिप्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस टिप्स फॉर यू। एग्जामिनेशन देने से पहले घर पे व्हेन आई वाज डूइंग मॉक पेपर्स, 20 मिनट में मेरा पेपर ओवर हो जा रहा था। वी गॉट 45 मिनट्स फॉर इंग्लिश। एग्जामिनेशन हॉल में जाके 15 मिनट बचे थे, मेरे 20 क्वेश्चंस बाकी थे जो मैंने देखे तक नहीं थे अभी तक। नाउ व्हाट डू यू थिंक मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए होंगे? एंड उन 15 मिनट में द टीचर केम टू मी, शी आस्क्ड मी टू paste my picture on a sheet, fill that form, my roll number, my center number and all that and sign there on a seat जिसमें बैक नहीं था रेस्ट लेने के लिए। लाइक आई हैड टू जस्ट सिट स्ट्रेट, देयर वाज नथिंग आई कुड रिलाई ऑन। टेबल्स ऐसे थे कि ओएमआर भरने में होल्स हो जा रहे थे शीट में लोगों के। एंड आई फिल माई रोल नंबर रॉन्ग इन द फर्स्ट पेपर इटसेल्फ। ये सारी चीजें तुम्हारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में होंगी एंड आई वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वी वर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द एग्जाम, नोबडी टोल्ड अस टू प्रिपेयर फॉर द environment and what was going to happen there. So be mentally prepared. इस बार एग्जामिनेशन हॉल में वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, तो पेपर से भी ज्यादा यू हैव टू बी प्रिपेयर कि तुम कंसंट्रेट करो अपने पेपर में, सामने क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। टीचर्स आपस में पंचायत कर रहे होते हैं क्लास में एंड तुम फोकस करना कुछ करो। हमारे क्लास में तो वी स्टार्टेड शाउटिंग ऑन द टीचर, भाई चुप हो जाओ, लेट अस फोकस, अलाउ अस टू फोकस। एंड व्हेन शी केम टू मी इन द लास्ट 15 मिनट्स, मैम अभी कराना है आपको, अभी कराना है। फाइट, आई फॉट हर, एवरीवन फॉट हर। देन फिर ठीक है। सो it's not just about the academic preparation, it's about the mindset. It's about being prepared for whatever is going to happen with you in examination hall. Remember, CUT is a very new exam. 3 बार कंडक्ट हुआ है अभी तक, 3 साल से कंडक्ट हो रहा है। योर बैच इज द 4th ईयर जब CUT कंडक्ट हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, आई विल बी विथ यू। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज कॉमेंट, आई रियली वॉन्ट टू हेल्प। एंड पढ़ाई करो अच्छे से, सब हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट।